क्योंकि बहुत सारा सवाल ये भी आता है भी जो ऑब्वियसली जो 150 करोड़ की पिच हुई तो लोग यही पूछते हैं कि यार वाकई में मिलते भी हैं क्या मिलते हो तो मैं बता देता हूँ वैसे Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another electrifying episode of Celebrating Sweet Success, broadcasting straight from the vibrant campus of the Institute of Business Management. Big shout out to our amazing partners Cadbury Dairy Milk and Dreamworld Resorts for making this show possible. I'm your host Saram Shud, Chief Operating Officer, Torque Corp, and today's guest is the perfect blend of creativity, strategy, and innovation. Imagine this. Campaigns that win awards, brands that shine brighter than ever, and groundbreaking media productions that captivate millions. Behind it all is an amazing leader with a decade of experience managing some of the world's most iconic brands. He is the co-founder of Prenlit Studios, the creative brain behind Shark Tank Pakistan, with senior roles at global media giants like McCann, Starcom Media West, and OMD Pakistan. He is a force to be reckoned with in the communications world. We present to you the game changer, the brand builder, Rizwan Siddiqui. Thank you so much. Assalamualaikum Rizwan, welcome to the show. How are you feeling today? वालेकुम अस्सलाम. फीलिंग ग्रेट और इस इंट्रोडक्शन के बाद तो और भी अमेजिंग. मैं यही सोचा था बीच में कि ये क्या वाकई में मैं ही हूँ. हाँ डेफिनेटली आप हैं और नहीं थैंक यू सो मच फॉर सच अ ग्रेट इंट्रोडक्शन एंड इट्स ग्रेट टू बी बैक. यस वेरी नाइस. ये बताएं कि you just stepped onto this campus after long या आप आते रहते हैं? I think last I came for a guest speaker session. I think this was back. I think 6 to 8 months back आया था. Okay, nice. So you've come. Yeah, I have कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चक्कर लग गए हैं मेरे. But हाँ, it's always amazing to be back यार. But have you things seen have the developments? really changed as compared to Yeah. 2010, 2011, the last when I graduated. So उसके बाद से तो बहुत changes हो गई in terms of obviously physically भी like the campus have really बहुत new buildings बन गई, facilities आ गई हैं, नए courses आ गए हैं, नए batch. So I think things have खाने की चीजें भी बहुत सारी खुल गई हैं. मेरा तो ध्यान मोस्टली वहीं पर ही रहता है. अच्छा ओके, वो शायद मैंने अभी तो एक्सप्लोर नहीं करी, वो मुझे एक्सप्लोर करनी है. आई थिंक वो आई डोंट नो इफ द कैफेटेरिया इज स्टिल द सेम बिल्डिंग. Yeah. Cafeteria is the same block. But then there's a lot of other stalls that have opened up outside as well. अच्छा, unfortunately शायद मैं उस साइड नहीं जा सका. मैं जब भी आया वो the session was also in that building जो हमारी academic block होता था मेरे ख्याल से यार. उधर ये admin and this is the maximum that I've come to. So I think इससे आगे मैं नहीं जा सका. अच्छा. And if we could go back to the time when you were a student here, वो कैसा टाइम रहा? वो तो बहुत ही अमेजिंग टाइम था. वो तो मतलब वो ऐसा है कि एंड यू कैन सी द स्माइल ऑन माय फेस कि मैं वो टाइम याद करता हूँ ना, तो बस वो इट वाज द बेस्ट टाइम. दोस्तियां यारियां पढ़ाई कितनी याद ही नहीं है. वो जो थी वो सादा भूलने की कोशिश कर रहे हैं. बट आई थिंक द टाइम दैट वी हैव स्पेंड, आई थिंक वो जो 4 years थे, वी यूज्ड टू बी लाइक डिफरेंट एंटरटेनमेंट सोसाइटीज के साथ थे. देन वी यूज्ड टू डू वी हैड अ थिएटर ग्रुप एज वेल, राव माफिया के नाम से. तो वो उसके साथ हम हर वक्त स्टेज पे चढ़े हुए होते थे और उस वक्त बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हो रही होती थी. आई थिंक वो ज़ेनिथ एक उस वक्त था एंड देन नया बैच आता था तो एक टैलेंट शो के नाम से शो होता था. देन alhamdulillah since we because of the fact that we got famous of our drama, so we did a lot of, I remember कोई 2007-8 में आई थिंक बलूचिस्तान पे में ज़लज़ला आया था. सो वी डिड अ फंड रेजिंग शो फॉर इट एज वेल एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब टिकट बेच रहे थे हम अपने शो के. लिटरली लाइक आई थिंक 50 या 100 रुपीज़ का था एंड वी वर लाइक यार पता नहीं आएंगे भी नहीं आएंगे, मतलब पैसे देके कौन आएगा मैं देखने. वो I've attended a few and they were house full. And when we और उसके साथ एक जो है ना वो लेडीज रूम होता था, and that used to be our backstage type. तो हमने जो वहाँ से निकल के देखा ना तो it was like literally लोग सीढ़ियों पे बैठे हुए थे. लिटरली वो सिचुएशन थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव बीन ग्रेट उसके बाद भी. बट वो जो 4 साल थे ऑब्वियसली अमेजिंग. अभी तक सारे शुक्र है कि सब दोस्त यार अभी तक चल रहे हैं एंड एवरीवन इज डूइंग वेल आल्सो. बट यस, सो इट वाज. और कोई टीचर्स अगर आपको याद हो फ्रॉम योर IOBM टाइम, कुछ ऐसे जिन्होंने सबक सिखा दिया या मे बी यू नो कुछ एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो आपको अभी तक याद रहे?
आप मुझे ऐसे देख रहे I हैं don't जैसे know, अरे मैं ये तो ना- मैं नहीं बता सकता यार. मैं सोच रहा हूँ नाम लूँ नहीं लूँ. आई वाज रियली बैड इन अकाउंटिंग एंड ऑल. Okay. सो कुछ ऐसे तो थे कि जो मुझे बड़ी मुश्किलों से मैंने वो गुजारा है वो कोर्स जो है ना. वो आई एम सॉरी आई एम बीइंग कैंडिड भाई, लेकिन Yeah. आप हर किस्म की सिचुएशन में हो सकते हो Yeah. थ्रू आउट योर लाइफ. बट हाँ, वो कुछ कोर्सेज अकाउंटिंग के तो ऐसे थे मैंने बहुत मुश्किलों से निकाले, मतलब बीच में छोड़ भी दिए, फिर दोबारा से इनरोल किया. सो रहे हैं कुछ टीचर ऐसे एंड मोस्टली फाइनेंस एंड अकाउंटिंग Yeah. वाली सिचुएशन में. बट नाम मैं नहीं लूँगा, अब तो वो मेरे पास फेसबुक वगैरह पे भी एडिड हैं. बट Yeah. हाँ, और फिर कुछ अच्छे टीचर्स तो आई थिंक हैं, काफ़ी टीचर्स आई थिंक आई रिमेंबर अच्छे उसमें, जो आई थिंक इधर एक मलिहा होती थी. Yeah. अभी मैं आ रहा था, मैंने नादिया अयूब को भी देखा. शी साइकोलॉजी पढ़ाती थी उस Yeah, वक्त, तो yeah. शी वाज अ वेरी गुड टीचर एज वेल. देन एक सर एजाज होते थे दी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाले, वो भी आई थिंक आई डोंट नो अभी तक है नहीं है. बट तो खैर वो उस वक्त, क्योंकि अगेन बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल न्यू आवर फेसेस Yeah. आल्सो Of बिकॉज course. ऑफ आवर Mafia. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो काफी लोगों से अभी अच्छा, और कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि IOBM से you've learned and it stayed with you till now, something that you've learned, you know, some skill. Some people say that they've earned friends from here. Some people say they've learned the skill of socializing, you know, because before that they were like they had no idea, and this is where they started meeting people. So how has it been like for you? Is there anything that you've learned? Yes, I think CBM में आना and then पढ़ना, I think it was sort of a life-changing decision for me as well, क्योंकि उससे पहले का मेरा exposure was a lot different. And then when I came to CBM was a huge difference in terms of the culture, in terms of the overall, I think, the level of induction that was being done in terms of the students, you yourself and Yeah. all others, I think. So वो socializing उनके साथ Right. and then different perspective of life, I think. उसके साथ, सो आई थिंक लाइफ चेंजिंग तो फॉर श्योर है. उसके बाद आई थिंक वो उसके बाद से माय पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ, माय पर्सपेक्टिव ऑफ डूइंग थिंग्स, हाउ पैशनेटली वन थिंग कैन बी डन से लेकर आपके अंदर स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करें, से लेकर आई थिंक क्रिएटिविटी की बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी यूज्ड टू डू ड्रामास एंड ऑल, तो वो एक राइटिंग वाले स्किल भी था, बिल्कुल. द कॉन्फिडेंस ऑन बीइंग ऑन स्टेज. सो आई थिंक माय प्रायर टू CBM was a vastly different experience, and then CBM वो 4 साल ने completely transform किया, and I think made me a lot ready for the professional life. So I Yeah. think Makes sense. hands down I think CBM के साथ, it's not just because कि मैं हूँ इधर या हम लोग इधर बैठे में, Yeah. but in my personal, हो सकता है बहुत लोग बोले नहीं किया है जो भी XYZ, but in my personal capacity I think a life-changing experience था मेरा. I think I echo your sentiments here, because I think for me as well this place has been a land of opportunities, and I think it depends on the person कि वो किस तरीके से इन opportunities को play out करते हैं. और True, you very know, true, very so true. so I think I can completely relate to it. अच्छा, अब थोड़ा professional journey की तरफ जाएंगे. CBM/IOBM, you graduated, ठीक है. अब उसके बाद क्या हुआ? Did you already have a job? What was it like? नहीं, उसके बाद बिल्कुल भी जॉब तो नहीं थी, लेकिन शुक्र है आई वाज लकी कि मिल गई फॉरेन. एंड मीडिया एट दैट टाइम वाज बूमिंग. इट वाज 2010 2011, सो 2004 से जो है मीडिया आपके पास ऑब्वियसली फ्रॉम अ वन चैनल सिचुएशन टू यू स्टार्ट मूविंग ऑन टू 50s and hundreds ठीक of है. channels जो आज Yeah, भी हैं. yeah. सो वो उस वक्त मीडिया इंडस्ट्री बड़ी बूम कर रही थी. सो बिल्कुल. और मीडिया प्लानिंग मीडिया एजेंसीज बेसिकली बन जोरों रही शोर थी. चल गया हाँ था. हाँ फिर क्या हुआ? एग्जैक्टली. सो हाँ, मुझे स्पेशलाइज्ड जॉब्स जो है वो उस वक्त बन रही थी, हाँ. क्योंकि उससे पहले का टाइम वही था, डॉक्टर, इंजीनियर, बैंक एंड वो वाली सिचुएशन आई थिंक. सो वो उसकी सो आई गॉट इनटू अ मीडिया एजेंसी जो एडकॉम थी, उसके साथ मीडिया प्लानिंग में, एंड देन देयर वाज अ कंप्लीट साइंस टू इट एज वेल. टीवी की रेटिंग्स आना शुरू हुई, रेटिंग मीटर्स लगे, ऑटोमेशन शुरू हुई उस प्रोसेस में. सो वो एक डेवलपमेंट वाला फेज जो है टिल आई थिंक 2018 2019 तक तो फॉर श्योर इट वाज बूमिंग. सो वो सो आई वाज लकी कि मुझे फॉरेन मिल भी गई. देन आई स्टेड देयर, देन आई मूव टू स्टारकॉम, उधर 2-3 साल डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम किया. देन आई मूव टू इस्लामाबाद फॉर कपल ऑफ इयर्स. आई थिंक दैट again was a very good How was experience. Islamabad's market? इस्लामाबाद मार्केट वाज, लेकिन बट आई थिंक वो Karachi? वहाँ जाके जब अकेले रहे एंड जॉब के साथ, सो आई थिंक दैट आल्सो
Was a learning experience? Yeah, that also brought about a lot of changes. Obviously, जब आप अकेले होते हो घर में, then you start. उससे पहले, unfortunately, but being a guy, you're not into like kitchen sort of situation, क्या ज़्यादा cooking, but अकेले रह रहे होते हो तो आपको बहुत सारी exactly भाई exactly मैं हाँ घर वालों की and then and I think this was a skill that is very much needed as well. हम शायद मैं यही बोलूँगा, I am an advocate of it. कि obviously helping even your partner or your family with the kitchen, with house help and everything. I think these are the skills that बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना वो नल्ला नहीं होना चाहिए इंसान को कि अब मैं खड़ा हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो चल ही नहीं रहा फ्राई पैन मुझसे. सो आई थिंक उसने वो 2 साल वाज वेरी चेंजिंग फॉर मी एज वेल इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनैलिटी ग्रूमिंग एज वेल. सो वो वहाँ पे एंड देन आई थिंक one good decision that I made in 2018, 2019, that was I think 6 months before COVID when I realized कि यार okay, TV yes is there but digital is now going to take, और digital तो उस वक्त आ चुका था but I think the new avenues like a डिजिटल प्रोडक्शन से लेके इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट से लेके ये वाले जो एवेन्यूज खोल रहे थे ना, सो देन आई काइंड ऑफ मेड अ शिफ्ट, अ ह्यूज शिफ्ट कि मैं बिल्कुल ही इन एजेंसी से निकल के कंप्लीटली एक डिजिटल एजेंसी में चला गया बाय द नेम ऑफ टीम रिएक्टिवेट, हु इज आल्सो द ओनर इज आल्सो अ सीबीएम ग्रेड, हमारे ही बैच का था. सो उससे एक अच्छी दोस्ती भी थी एंड ही वाज फॉर क्वाइट सम टाइम वाज कि यार आओ करते हैं साथ ही काम, ज़ाहिर सी बात है. तो वो देन आई मूव्ड देयर, उनके साथ मैंने 3 साल लगाए एंड आई थिंक वो डिजिटल की दुनिया की बहुत सारी चीज़ें उधर सीखी. बिकॉज इवेंचुअली इन टर्म्स ऑफ स्पेंड्स भी अगर आप देखें तो टीवी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स एज कम्पेयर टू डिजिटल, क्योंकि ज़्यादातर स्पेंडिंग वहाँ जा रही है, बिग बजट्स इन्वॉल्व हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जा रहे हैं. बट देन आई मेड दिस शिफ्ट एंड देन डिजिटल पे वहाँ पे एंड देन आई गॉट इनटू लॉरियल और अब माशाल्लाह से अब 2.5-3 साल. एंड लॉरियल में व्हाट ऑल हैज इट बीन देयर? L'Oreal has been a great. अब अगेन यू वुड से कि यार मैं हर एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ कि मेरे लिए बड़े लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस हैं. एक्सपीरियंस हो सकते हैं. हाँ लेकिन every day is a new experience. हाँ वेरी ट्रू. और मैं मतलब उधर में जब लॉरियल आया था, एक्साइटेड, मैं अभी भी बता दूं आपको, मैं एक्साइटेड हूं कि ये लॉरियल से ये जो जंप मारी है ना एकदम से शार्क टैंक, आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस. सो यू फिनिश अप योर लॉरियल एंड आई रियली वांट टू नो हाउ डिड यू get into the tank of these sharks. So L'Oreal obviously best place to work in, for sure. वो तो मैंने बहुत सुना है. हाँ वो for sure बिल्कुल सच है वो. I think वो जो values वहाँ से मिली, जो I think work culture वहाँ से मिला, I think you are within the system even though you are connected to like across the globe obviously, or L'Oreal as a global is a big and we are every time connected, like even my metrics manager is in Singapore, so उस उधर भी reporting चलती है, यहाँ पे भी चलती है. So I think इतनी बड़ी organization होने के बाद भी I think the way you are being heard in terms of, मैं एक छोटी सी example अगर दूँ, when I remember when I joined in and there was a lot of noise around कि यार meetings बहुत होती हैं पूरे दिन में, हम meetings ही करते रहते हैं, when do we work? and हाँ and literally that was being heard by the HR and वो पूरी एक global उस पर जो है एक policy बनी Simplicity 2 के नाम से, जिसमें आया कि भाई you cannot do a 60-minute meeting, maximum can be 45 minutes, और आपने 2 घंटे पहले इनवाइट निकालना है, एजेंडा क्लियरली एंड ब्ला ब्ला ब्ला, मुझसे बहुत सारी चीजें थी. एक्शन टेकन. हाँ देन वी गॉट वार्म अप मंडेज कि भाई मंडे को सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक यू आर सपोज नॉट टू हैव एनी मीटिंग, दैट इज योर टाइम, दैट इज योर टू डू लिस्ट टाइम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन. हाँ एग्जैक्टली. सो वो ये वाली जो सिचुएशन है वो हमेशा मुझे लॉरियल में आके पता चली, एंड आई थिंक वो अगेन बड़ा एक डिफरेंट वर्किंग विद MNC and MNC like L'Oreal I think is अच्छा. So you've worked with a lot of like great global organizations. कोई एक stand out campaign या project that kind of defined your career or you realized कि यार मतलब I've like done this, कुछ ऐसा कुछ moment रहा है कि जिसमें you felt proud of yourself? अभी शार्क टैंक पे बात नहीं है. दिमाग में तो सबसे पहले वही आ रहा था कि भी सबसे पहले उधर ही चला जाऊं. हाँ उसके अलावा मतलब एक रेगुलर नॉन शार्क टैंक कैंपेन्स तो खैर बहुत सारी करी हैं. आई थिंक मतलब अकम्प्लिशमेंट फील हुई हो
एक दो ऐसी हैं कि शायद वो आई थिंक थोड़ी सी उस पर चली जाएंगी, मैं शायद इधर बोलूँ नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ कैंपेन्स तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी करी हैं। आई थिंक इनिशियली जब एंग्रो के साथ भी काम कर रहा था मैं, so उधर भी लॉन्चिंग ऑल पर्स एंड वन ऑफ अदर देयर प्रोडक्ट जो उमंग था इन तरंग एंड वो पूरा पोर्टफोलियो एंड वो पूरा लॉन्च, वो आइसक्रीम की ओमोर के नाम से आती थी, अभी भी है। सो वो आई थिंक दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट टाइम, वो स्टार्ट का भी था। व्हेन आई started at Starcom, I think 1.5 year का experience था, and from Adcom and Starcom to a huge shift, because Starcom was a bigger agency than Adcom in terms of media, not the creative. So जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी responsibility थी, to be honest, 1-1.5 साल के experience के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी। And I've literally, अब वो वाली चीज़ है ना कि जब करना है तो करना है वाली करनी है, अब तो करने भी तो टाइम है गुजारने। एंड आई रिमेंबर आई वाज इन स्टारकॉम फॉर द एंटायर वीक। मैं स्टारकॉम में वहीं सो रहा था, मैं वहीं उठ रहा था लिटरली। मैं मतलब 4 रात, मुझे याद है कि मंडे को मैं ऑफिस आया हूँ और मैं थर्सडे नाइट वहाँ से निकला था, क्योंकि वो इट वाज अ न्यू क्लाइंट दैट दे गॉट एंड देन आई आल्सो जॉइंड देम। सो वो सिस्टम समझना, ब्रांड को समझना एंड देन उसकी लॉन्च कैंपेन। सो आई थिंक दैट वाज अ टाइम व्हिच आई रियली टेक प्राइड इन एंड आई जेन्युइनली से कि यार आपको बहुत सारी सिचुएशन में ना प्रोफेशनल लाइफ में ऐसे लग रहा होता है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं भी करूँ तो मसला नहीं है, मतलब मुझे नहीं करना है या नहीं करूँ। लेकिन आप जो भी करते हो ना वो आपकी लाइफ में कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। मैं आपकी जो भी मेहनत, जिस आपको शायद लग रहा हो कि मेरा काम ये है, मैं इस तरह क्यों मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन वो मेहनत आई कैन अश्योर यू कभी ज़ाया नहीं जाएगी। वो शायद 2 साल बाद लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आए कि आप बोलेंगे यार शुक्र है मैंने 2 साल पहले ये सिचुएशन गुजारी हुई है, तो आई कैन नेविगेट थ्रू इट। So that is for sure. So I think that was a time which I really cherish. कि यार वो एक huge time. If you feel that was an accomplishment, I can 100% tell you कि ज़रूर मेहनत लगी है। वो for sure, मैं बता रहा हूँ ना, वो निकला ही नहीं हूँ मैं, पूरी रात पूरे दिन वहीं होता था। वो वहीं पे सोफे पे लेट के सो गए, इस रिसेप्शन एरिया में 4-5 घंटे उठे और फिर शुरू हो गए। अब जो है ना हम ड्रम रोल, क्योंकि अब हम बात करेंगे शार्क टैंक की। तो रिजवान, शार्क टैंक की जो Shark Tank Pakistan, I'd call it, एक बहुत ही monumental project है, and it's actually inspiring a wave of entrepreneurship in the country, right? So सबसे ज़्यादा remarkable चीज़ इसमें ये है, और मतलब मुझे I feel very proud and I'm sure IOBM also feels proud कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा IOBM के alumni involve हुए हैं in trying to make it possible and bring it to the screens and all. आपके एक co-founder तारिक, हमारी host जो रबाब हाशिम, फिर उमेर मासूम जो कि माइको पे लाइव स्ट्रीमिंग। सो आई मीन हाउ डज इट फील टू सी सो मेनी फेलो IOBM grads coming together, and how do you feel first, and how was the collaboration like how did it turn into? I think इतने CBM grads से obviously इन्हीं की वजह से आई थिंक वो पॉसिबिलिटी बनी चीज़ों की, क्योंकि ये तो सिर्फ ये हैं, बट ऑब्वियसली कुछ ब्रांड साइड पे भी ऐसे लोग थे जो पहले से जानते थे, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज ये सबसे पहली दफ़ा इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम थिंग्स वर हैपनिंग टू इट। ऑब्वियसली शार्क टैंक कमिंग टू पाकिस्तान इज द फर्स्ट थिंग, बट ये कंटेंट हाउस का कॉन्सेप्ट वाज न्यू। इससे पहले होता ये था कि चैनल्स, कोई भी प्रोग्राम करना होता तो चैनल्स IP लेते थे और चैनल्स बनाते थे उसको। This was the first time when a separate production content house went to the brands. एक तो went to obviously Sony to get the rights also, but उसके अलावा brands के साथ उसकी marketing, उसकी selling, उसकी production, everything, an independent production या content house जिसका channel से कोई ताल्लुक नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है, वो करने जा रहा था। अच्छा, उसके साथ साथ obviously उसमें बहुत सारे challenges थे कि यार अच्छा किस तरीके से होगा, ब्रांड के साथ बैठ रहे हैं तो अच्छा आप चैनल नहीं है तो चैनल पे हम मिनट्स कैसे चलाएंगे, और ये कैसा, फिर चैनल के साथ बैठना है कि यार अपना स्लॉट हमें दे दो। सो बट आई थिंक वो जो गुड पार्ट इज दैट द इंडस्ट्री काइंड ऑफ अंडरस्टूड एंड आर ब्रीफ ऑल्सो टू देम कि यार इट काइंड ऑफ एड्स द ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी इन द प्रोसेस। किस चैनल तो नहीं चलेगा, वो अपने को ड्रामे तो उसके चल रहे हैं, वो वापस चला जाएगा, ड्रामे बनाते रहेगा, उसकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ रहा। आइडल भी हुआ था, मास्टर शेफ भी हुआ था, बट वो नहीं हो सके सेकंड सीजन। बट फॉर अस वाज कि यार हम कंटेंट हाउस है, मैं तो अगर ये वाला चीज़ मैंने फ्लॉप कर दी तो इसके बाद मैं जब दूसरा कंटेंट लेकर आऊँगा मेरा तो कुछ नहीं चल रहा और इसके अलावा। सो आप ऑब्वियसली द ब्रांड्स वुड से कि नहीं यार वी ऑब्वियसली छोटी सी मार्केट है, ब्रांड्स विल नॉट टाई अप विद अस, सो वी हैड टू डू इट गुड। सो दैट काइंड ऑफ adds the overall auditability to the entire process, and I think इसी की वजह से now you see the quality that
हैज़ कम आउट, जो आई डोंट नो योर व्यू बट ओवरऑल जो मार्केट से सेंटिमेंट्स हैं एंड द टॉकेबिलिटी अराउंड द कंटेंट इन टर्म्स ऑफ वो भले वो सेट डिजाइनिंग से लेके द कैमरा क्वालिटी, द पिक्चर क्वालिटी, द कंटेंट दैट इज हैज कम आउट, आई थिंक वो ओवरऑल इसी वजह से दिख रहा है बिकॉज देयर वर independent passionate people involved in this process जो अच्छा content करना चाहते थे पाकिस्तान so the मेहनत shows. I don't know if it's all right to call it costumes वगैरह या whatever people are wearing and how it's shown, the setup, the stage and everything else. It looks perfect. It's really awesome and I think मेहनत नजर आ रही है तो लोग enjoy करें. And my way of looking at things, like if I had to judge, I would say conversations में क्या Shark Tank उठ के आ रहा है and it is like it's popping up everywhere. So I think this is exactly what you wanted and it's happening. So you should be proud of yourself. नहीं, we are very proud of it obviously and the good part is I think जब हम लोग content क्योंकि हम पीछे डायरेक्टर्स रूम में ऑब्वियसली बैठे हुए जब देख रहे होते थे, ऑब्वियसली इट्स रियलिटी शो तो वहाँ तो शार्क्स एंड एंटरप्रेन्योर है तो जब वो दोनों हैं तो वहाँ पे और कोई नहीं है, अब वो उन्हीं की चल रही है एंड ऑब्वियसली ऑन टीवी ऑन यूट्यूब यू सी 15 मिनट की एक पिच टू मैक्सिमम, बट वो एक्चुअली जो है वो 30-40 मिनट्स की चल रही होती है. जैसे तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो भी बंदा सवाल तो जाहिर सी तो एडिट होके लगती है, बट आई थिंक जो हम बैक एंड पे बैठे हुए देख रहे होते थे इट वाज रियली इंस्पायरिंग एंड इट वाज रियली ग्रेट टू सी कि यार ये पाकिस्तान में लिटरली मतलब हमें भी रियलाइज़ हुआ कि यार पाकिस्तान में तो काम हो रहा है, मतलब है हमें नहीं पता था या लोगों को नहीं पता, लेकिन क्योंकि अनफॉर्चुनेटली लास्ट 2 साल में ड्यू टू द मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑब्वियसली एंड वो हाइपर इन्फ्लेशन का टाइम एंड सारी चीज़ें ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी हैज़ कम इनटू द सिस्टम, बट हम वहाँ देखिए रियलाइज़ हो रहा था कि लाइक देयर इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव साइड टू पाकिस्तान. पीपल आई डोंट नो इफ यू आर फॉलोइंग इट और नॉट, बट इन द लास्ट एपिसोड यू सॉ वो बलोचिस्तान उथल बलोचिस्तान से एक लड़का लड़की आए और वो अपना काम करके इन्वेस्टमेंट लेके गए. उससे पहले वो जेकबाबाद से एक लड़की आई जिसको बेटी होने पे घर वालों ने निकाल दिया एंड देन हाउ शी नेविगेटेड थ्रू लाइफ एंड देन शी गॉट द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, बट उसने किस तरीके से अपना ब्रांड डेवलप किया. बट सो दीज आर द इंस्पायरिंग स्टोरीज दैट यू सी एंड यू से कि यार नहीं मतलब पाकिस्तान वाकई में है पाकिस्तान वो तो नो डाउट, बट यस एंड आई थिंक कंटेंट हियर ओवरऑल आर पेन पॉइंट बिकॉज वी वर इन द मीडिया इंडस्ट्री, तो हमारा पेन पॉइंट हमेशा से था कि यार the quality of content that is being churned out in Pakistan is not really up to the mark. अगर आप globally देखें ना तो content plays a very globally भी और locally भी content overall plays a very important role in the development of mindset also. So even if you see any new concept, for example if you see in India उन्होंने अपना जो भी एक challenges थे उसके अराउंड उन्होंने एक पैडमैन के नाम से मूवी बनाई और उन्होंने उस सब्जेक्ट पे एक वो दी. Right now, even if you see the new the LGBTQ AI, so you would see a lot of it in the Netflix, in the Indian. We see normalizing it normalizing it. So content really plays a very important role in normalizing things as well, or to develop the mindset of the generation. So I think that was the main pain point that we kind of decided कि यार Grindlit के नाम से हम ये company भी form करें and then we will keep on doing meaningful content, not just के content for the sake of content हो रहा है. अच्छा, looking ahead, Rizwan, tell me what's next for Shark Tank? What happens once the season is over? और फिर हम इस पे बात करेंगे कि Shark Tank का process क्या होता है, like what is happening behind the scenes? So दोनों. So I think अभी for now तो obviously जो businesses So what happens once these episode air, obviously इसकी हमने shoot तो obviously 1 महीना पहले कर ली थी, उसके बाद edit and then it goes. So having said that journey तो पूरे 6-8 महीने की है जहाँ पे business हमने एक पोर्टल खोला, businesses की entries आई, उनको shortlist किया, then we auditioned them in an incubation center के साथ partnership पे, then उसको लाके उनके 1-2 sessions कराए on business valuation, on how to present वो 1-2 हाँ 1-2 हम लोगों ने गेस्ट स्पीकर सेशंस को बुला के इन्वेस्ट मतलब क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ फर्स्ट सीजन एंड वी वरंट रियली श्योर टू बी ऑनेस्ट कि किस तरीके के लोग आएंगे, किस तरीके के बिजनेस आएंगे. बिल्कुल इट वाज अ शॉट इन द डार्क वाली सिचुएशन. तो हम लोग वी रियली काइंड ऑफ हेल्प देम टू काइंड ऑफ प्रिपेयर एज वेल व्हिच रियली वर्कड आउट. सो वो पूरा प्रोसेस हुआ एंड आई थिंक वो बिजनेस जब हम लोगों ने एंट्री पोर्टल खोला तो एकदम से हमारे पास 850-900 एंट्रीज आ गई एंड वी वर रियली हां एंड वी वर लाइक यार मतलब ये कैसे आ गए इतने बिजनेसेस. देन उसको वी वरंट रियली एक्सपेक्टिंग इट, पहला सीजन है, लोग करेंगे नहीं करेंगे क्या जो भी है. लेकिन खैर वो सारी प्रोसेस हुआ, अब ये तो खैर हो गई, शूट हो गई, जिनको इन्वेस्टमेंट मिली है उनके साथ एक
क्योंकि बहुत सारा सवाल ये भी आता है अभी जो ऑब्वियसली जो 150 करोड़ की पिच हुई तो लोग यही पूछ रहे हैं कि यार ये वाकई में मिलते भी हैं क्या मिलते हैं तो मैं बता देता हूँ वैसे कि भाई इसके बाद जो है वो पूरा ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है जो एक इन्वेस्टर जो है वो उस कंपनी के साथ मिलके करता है Of course. कि भाई जो नंबर्स कोट किए थे वो सही हैं नहीं हैं, बुक्स प्रॉपर हैं नहीं हैं। आप लोगों ने एक दो पिच में शायद देखा होगा जहाँ पे आई थिंक फैसल आफ्ताब सेड कि यार वी विल रिप्रेजेंट योर बोर्ड एज वेल बिकॉज कंप्लायंस बहुत ज़रूरी है इस तरीके के बिजनेस में। सो वो पूरी ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस होता है एंड देन थिंग्स आर ओके। हाँ जो उसने रेवेन्यू बोला था वैसे ही है ये सारी चीज़ें फिर वो हो जाती कुछ की इन्वेस्टमेंट थ्रू हो चुकी है ऑलरेडी। सो ये पूरा प्रोसेस होता है इसके बाद फिर इंशाल्लाह अभी जब वंस आई थिंक अभी तो हम 5th एपिसोड पे एज नाउ वी स्पीक तो हम 13 एपिसोड हैं सो इट्स गोना टेक अराउंड 2 Which one's your favorite episode? पहली वाली कैसी रही? आपको डर लग रहा था जब वो शूट हो रही थी? जजेस की तरफ से क्या पर्सपेक्टिव था? हवा में क्या मतलब क्या चल रहा था? What was your feeling like? थोड़ा सा टेक्निकल होगा लेकिन शूट में डर नहीं था क्योंकि ये इसकी शूट जो है ना वो सो इट्स नॉट शॉर्ट रियली एपिसोड वाइज। So even if you see and if you ever see and you wonder कि यार ये एक ही कपड़े क्यों पहने हुए हैं इसने तीनों एपिसोड में, so मैं आपको बता देता हूँ। So ये शूट ऐसे होता है that like you do it pitch by pitch and ideally in like पूरा सीजन 2 से 3 का वैसे तो सोनी तो कहते हैं कि एक कपड़ों में ही कर दो ताकि कुछ एपिसोड बाद में बनती है इसकी कि इफ यू गो फॉर अ शूट एंड यू से कि यार आज पहली एपिसोड है और उस दिन कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं मिली बिजनेस को तो योर एपिसोड गोज डाउन। नाउ व्हेन यू से दिस मुझे कैमरन हैरी और वो जो मार्क क्यूबन है वो एक ही कपड़ों में याद है। मैं आई कांट इमेजिन देम इन अदर सूट्स बिकॉज़ दैट्स ओह माय सो दैट्स हाउ इट्स शॉट देन वो एडिट में बनती है एपिसोड की यार ओके दिस इज अ स्ट्रांग पिच इसके साथ चाहिए वाली पिच डाल दो यहाँ थोड़ा वायरलिटी है इसको डाल तो वो फिर पूरी एडिट में बनती है वो एपिसोड। वाओ सो ये इसलिए डर नहीं था। हाउ वाज योर फीलिंग लाइक व्हाट वर यू फीलिंग एट दैट टाइम व्हाट वर योर बाकी टीम फीलिंग कि हो जाएगा नहीं होएगा सब कुछ कर चुके हैं हम सब कुछ डाल दिया हमने। नहीं वो उससे पहले की डेफिनेटली आई थिंक जब शूट होना शुरू हो गई तब तो था कि हो जाएगा लेकिन उससे पहले भी आई थिंक बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक बहुत ही चैलेंजेस थे इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली इन अ बिजनेस लाइक दिस कैश फ्लो मैनेजमेंट एक चैलेंज होता है ऑब्वियसली इतनी बड़ी प्रोडक्शन खड़ा करना दो स्टूडियो एक स्टूडियो में लाइक 2 सेट क्रिएट किए हुए थे एक वो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स जो आ रहे हैं क्योंकि दे एंड शार्क्स कैन नॉट नो ईच अदर एंड दे कैन नॉट मीट ईच अदर बिफोर द पिच वन ऑफ द SOP सो दे वर इन अ सेपरेट फ्लोर दिस स्टूडियो वाज इन अ सेपरेट फ्लोर तो वो पूरा मतलब बहुत बड़ा सेटअप था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीजन में आई इनवाइट यू ओवर सो कम विजिट द ओवरऑल सिचुएशन बट सो वो आई थिंक चैलेंजेस तो फॉर श्योर बहुत थे लेकिन शुक्र है हो गया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स रियली गुड एंड यू सीम टू बी इन हैप्पी शूज सो दैट्स ग्रेट। अच्छा ग्रेनेड के लिए क्या नेक्स्ट है मतलब शार्क टैंक तो अभी चल रहा है और कुछ अपकमिंग चीजें और कुछ प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स तो हैं फॉर श्योर बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स अ स्पेशलाइज्ड कंटेंट हाउस लाइक द डिज्नीज और एनी अदर यू कुड थिंक ऑफ सो आई थिंक वो तो और भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी कुछ IPs पे भी काम हो रहा है इंटरनेशनल बट लोकल कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट IP से आप इतना नहीं कर सकते सो तो कुछ म्यूज़िक जॉनर के अराउंड कुछ किड्स पे कुछ इधर तो वो चीज़ें मल्टीपल चल रही हैं इंशाल्लाह will keep coming and then hopefully you invite me for the next season 2 because of any हमारा भी season 2 अच्छा अब थोड़ा सा अब challenges के बारे में बात करेंगे every career has its ups and downs what's one challenge that you may have faced and how did you turn it into an opportunity ये चैलेंजेस अच्छा जिस तरह मैंने बताया कि मेरे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बहुत रहा है चैलेंजेस इज समथिंग वो भी रोज ही मैं चैलेंजेस जब कुछ भी कुछ करने की जरूरत आप सोच के कुछ गुजरत हो कि ये मैं करने जा रहा हूँ और ऐसी सिचुएशन हो जाती है सो आई थिंक और वो सबके साथ ही हुई थी खैर उस टाइम पे तो जब कोविड आया तो ऑब्वियसली यू हैव योर ओन प्लान्स कि उस वक्त हम जा रहे थे और मैंने एज आई मेंशन लेके मैंने रिटेल एजेंसी ज्वाइन करी और मैंने मैं गया और वहाँ जाके जो है कोविड आ गया अब सिचुएशन ही समझ में नहीं आ रही कि करना किस तरीके से। अच्छा वो अनफॉर्चुनेटली खैर शुरू के 6-8 महीने तो पर्सनल लेवल पे एंड आई कैन बेट माई लाइफ ऑन के हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा चैलेंज था वो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि काम कैसे चलाने हैं घर से बैठ के कैसे करें ये मीटिंग बिल्कुल ही एकदम से बहुत ही ट्रांजिशन था सो वो पर्सनली भी आप दिन में भी काम कर रहे होते थे रात में भी आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड हैव फाउंड देमसेल्व्स इन दिस सिचुएशन क्योंकि एकदम से सिचुएशन चेंज है आपको पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी है एट अ कंपनी लेवल वो उसको नेविगेट करने के लिए सो वो आई थिंक वो 6-8 मंथ तो बड़े ही
हर किसी के लिए ही चैलेंजिंग थे। Right. खैर वो भी एक सिचुएशन थी। आई थिंक कहीं ना कहीं इवन व्हेन आई जॉइंड दिस कंपनी दैट आई आल्सो वर्क इन द लॉरियल, वहाँ के आई डोंट नो इफ आई शुड बी सेइंग इट और नॉट, बट कुछ इम्पोर्ट बैन सिचुएशन एंड ये वो चैलेंजेस कहीं ना कुछ रहे हैं। I know too. तो लेकिन हाँ, बट आई थिंक वही है यार, स्ट्रीट स्मार्टनेस आई थिंक बड़ी ज़रूरी है आपको। यू शुड बी, आप अवॉइड तो नहीं कर सकते किसी भी सिचुएशन। तो अगर आपके हिसाब से चले तो हर किसी की लाइफ बड़ी आइडियल हो कि यार ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मतलब ऐसे तो वो तो आएगी आएगी, बट यू शुड बी काम एंड केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि यार ये तो है, अब इससे निकलना किस तरीके से, किस तरीके से आई नीड टू ड्राइव थ्रू इट। सो वो सिचुएशंस को तो अवॉइड ही किया ही नहीं जा सकता। एक कंप्लीट दिस फॉर मी। एक दिन मैं बैठा हुआ था लॉरियल में और शार्क टैंक कैसे आ गया really wanna know. एक दिन मैं गया लॉरियल में, मैं काम कर रहा था और फिर शार्क टैंक आ गया। ये क्या स्टोरी है? क्योंकि यू मेंशन्ड ऑल द चैलेंजेस, ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपेंड। सोनी को अप्रोच किया, ये क्या वो क्या, ये उससे पहले हुआ क्या कि शार्क टैंक का जहन में आया? हाँ, आई थिंक वो 2-3 पार्टनर्स हम लोग हैं साथ जो काम कर रहे हैं। आई थिंक वो कहीं कन्वर्सेशन हुई। आई थिंक मैं तो खैर बाद में लाया गया इसमें, नॉट आफ्टर शार्क टैंक, बट कि यार थर्ड पार्टनर ओके दैट कैन लुक एट द कमर्शियल एवेन्यूज एंड एज वो, सो ओके यार दिस इज द गाय। सो वो लोग भी दोस्त थे, उधर डिस्कशन हुई। देन आई वाज टेकन ऑन बोर्ड कि यार इस तरीके से कंटेंट हाउस बना रहे हैं वो। शार्क टैंक उस वक्त नहीं था, एंड देन वी सेड कि अच्छा हाँ कंटेंट हाउस बनाएंगे। फिर वो करते करते लिंक्स बनते हम एकदम से शार्क टैंक पे लैंड कर गए। वहाँ भी ऑब्वियसली सिंस इट वाज अ स्टार्टअप ऑफ सॉर्ट्स, तो चैलेंजेस थे कि पता नहीं देंगे एकदम से नई कंपनी को। बट वी प्रेजेंटेड टू देयर टीम एंड दे काइंड ऑफ अग्रीड एंड देन वी गॉट द लाइसेंस एंड देन बस जस्ट थिंग्स केप्ट ऑन गोइंग। और बस जॉब के साथ स्पेशल थैंक्स टू लॉरियल कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मेरी जाने दी वरना आई थिंक No, but this is amazing. This is so good. अच्छा, रिजवान, for anyone dreaming of a career in communications and media, क्या advice देना चाहेंगे आप उन्हें? मैं सबको आई थिंक क्लब कर देता हूँ। Someone who is kind of getting into the professional life, plus someone who's thinking of doing their business, या इवन जब एंटरप्रेन्योर्स की एक वेव चल रही है। क्योंकि हमेशा ये कहता हूँ कि यार आज से 2 साल पहले, यार आज से 4 साल पहले ना हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता था भाई। तो क्रिकेट एक पैशन पॉइंट था ऑडियंस का कि यार क्रिकेटर बनना है, या म्यूजिशियन बनना चाहता था आज से 6-8 साल पहले हर कोई। अब हर कोई ना बिजनेस करना चाहते हैं, हर कोई स्टार्टअप। अभी तो आप हाँ और अभी तो हमने तो शायद यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं किया, हमने तो अपनी कहानियां सुना दी ना कि यार स्टेज पे और यूं ड्रामा और ये वो। आजकल के स्टूडेंट्स हैं, आप मैं आई एम श्योर आप 10 को रोक के पूछे उसमें से 8 बोलेंगे मैं अपना काम ऑलरेडी कर रहा हूँ, कर रहे हैं या करना चाहता हूँ या कर चुका हूँ। मतलब कोई ना कोई फ्रीलांसिंग चल रही है उनकी साइड में। मतलब हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली सॉरी, लेकिन जिस तरीके जब इंटर्नीज आ रहे होते हैं इवन एट लॉरियल या एमटीज आ रहे होते हैं, तो दे already are doing something. मैंने इंटरव्यूज किए हैं, उसमें यही था, मैं अपना ये कुछ ऑलरेडी कर रहा हूँ, but I would also like to, but this is how it's like, this is how by 2030 we'll be doing 5 to 6, will be part of 5 to 6 roles, given your example as well, L'Oreal and so I mean मैंने भी जब लॉरियल में डिस्क्लोज की चीज किया, this is how I because obviously being transparent, तो मैं जब कर रहा था तो मैं I openly told the man जो मैनेजमेंट, हाँ ओके भाई this is what I'm going into, and obviously उनके कोई SOPs थे। So उधर से मुझे भी ये पता चला, उन्होंने बोला कि यार even though I was thinking यार पता नहीं क्या ये वो, उन्होंने बोला हाँ मतलब it's not a new thing globally भी, because of the all the situation that is going on, so we have an entire policy specially made for it which we crafted 1.5 year back, because हर मार्केट में यही हो रहा है कि कोई ना कोई कुछ नहीं तो इन्फ्लुएंसर तो बना ही है। They have their own thing going on. And being in the beauty company obviously, so you would find in every country you would find कि हाँ employee भी है लेकिन ये influencer भी है, हमारे इधर भी और 3-4 हर so yes, so हर कोई जो है वो business, so entrepreneurship has really become a very passion point for this audience. So I think कुछ जगह पे जो है ना असल में एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा जो है वो ले लिया जाता है बिजनेस सेंस में। सो एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू वांट टू डू अ जॉब आल्सो। इसमें कोई बुराई नहीं है कि यार मैं जॉब नहीं, मैं काम, अगर आप जॉब भी करोगे तो राइट ना, अब टाइम वो नहीं है कि यार बॉस मुझे बताएगा ये करो और मैं करके ले आऊँगा और ये हो गया, ऐसा नहीं। यू नीड टू पिक अप योर ओन बैटल्स, यू नीड टू पिक अप योर ओन प्रोजेक्ट, यू नीड टू बी अ डूअर
कि यार मैंने ये गैप आइडेंटिफाई किया कि हमारी कंपनी में यूं नहीं हो रहा, मैं इस चीज़ को ऑटोमेट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल। हाँ उस प्रोजेक्ट को आपने उठाने हैं, यू नीड टू बी अ डूअर और करके आ जाना है आपने। देयर इज नोबडी स्टॉपिंग यू एंड दोज आर द इंडिविजुअल्स दैट इवन ग्रो फास्टर इन देयर प्रोफेशन। सो इट्स अ माइंडसेट ऑफ बीइंग अ डूअर कि यार ठीक है मेरे दिमाग में ये आया। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस भी है कि अभी मैं रिसेंटली एक यूनिवर्सिटी में गया हुआ था एक सेशन के लिए, तो वहाँ पे भी किसी ने पूछा मुझसे कि यार हम तो हर वक्त जॉब ही करी है, हमारी पूरी फैमिली ने पूरी लाइफ में हमने, और जब मैं किस तरीके से करूँ मुझे आते हैं दिमाग में आइडियाज़, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा। और उसका और कॉन्टेक्स्ट में समझ रहा था कि उसका पॉइंट ये था कि मुझे जॉब करके फ़ौरन सपोर्ट देनी है। भाई हमने भी जॉब करते ही फैमिली को सपोर्ट दी है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आवर सैलरी used to go in the family thing कि यार अब्बा के पास जा रही है जो भी सारी चीजें। So while even if you are doing a job, this is a mindset which you kind of need to adopt कि यार मेरे दिमाग में अगर कोई आइडिया भी है या अगर मुझे कोई काम की सूझी भी है, इवन दो शायद हो सकता है वो आप बिल्कुल ही एंड पे ना ले जा सको, लेकिन उसके अराउंड वर्किंग एटलीस्ट यू नीड टू बी अ डूअर कि यार अच्छा मैंने ये आइडिया सोचा है कि मैं ये बनाऊंगा और ये बेचूंगा, अच्छा अभी बनता कैसे है, उसके अराउंड रिसर्च, उसके अराउंड क्या कंपटीशन है वो कैसे हो सकती है, एंड देन मे बी एट द स्टेप 10th यू से कि नहीं यार दिस इज नॉट मार्केट फिट, मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और कर लेता हूँ, वो होगा। बट दिस माइंडसेट नीड्स टू कम कि यार यू नीड टू बी अ डूअर कि मैं उठूंगा, मैं करता रहूंगा, मेरी एक आदत बन जाएगी ऑफ हैविंग दिस स्किल सेट, हैविंग दिस माइंडसेट, एंड देन वन डे जब होना होती हैं चीजें तो फिर तो वो ऐसी होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि वो हो गया। Thank you so much Rizwan, this was amazing, very very solid advice. I hope everyone adheres to it. In conversation with the brand builder, the campaign maestro and the creative force behind Shark Tank Pakistan, Rizwan Siddiqui. We're moving on to the next segment of our show, the Fiery Games. Let's do this. All right Rizwan, are you ready? Even if I'm not, does it matter? So my first word is leadership. This is a skill that can be learned, I think. ऐसा नहीं होता कि leaders are born. But leadership over the years बड़ी change होती है, बड़ी evolve होती है, and that evolves looking at the generation. So आजकल की generation versus our generation was a lot different. So you need to be like keep developing this. It's not just कि you're a leader तो I'm a leader और मैं शुरू से I didn't know you'd have this in your pocket, but really good. Nice. Okay, media campaigns. क्या बोलूं मैं इस पे, कोई एक ब्रांड, आई थिंक तरंग मैं बोल सकता हूँ। We used to उसकी कैंपेन्स करने में बड़ा मजा आता था, हमने like we did like the content around it and that makes sense. Teamwork, very important. टीम प्लेयर होना बहुत जरूरी है obviously, वो तो मतलब उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। बिल्कुल। IOBM यार IBM से तो बहुत है, इसको मैं जो था ना मतलब मैं कम वर्ड्स में नहीं इसको कर सकता डिस्क्राइब, बट आई थिंक अमेजिंग, फन, pure personal development during this phase. Next word is success. Success is what you define it. It's not कि मेरे पास ये level of गाड़ी होगी और ये level of position होगी तो मैं करूँगा. Success is what you define it. Obviously you need to be aiming high. But अब तो वो दौर है कि अब हम अगेन वही डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर से बाहर निकल आए, और अब आगे जाते हुए तो आई थिंक अब जिस तरीके से डिजिटल वर्ल्ड इवॉल्व कर गया, मेरे ख्याल से तो बहुत सारी फील्ड ऐसी होंगी जिसमें शायद डिग्री के बगैर भी लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे होंगे विद द स्किल सेट दे लर्न ऑनलाइन। तो वो आई थिंक अपने इन्फ्लुएंसर्स ही देख लें। हाँ देयर यू गो। ट्रू कुछ है ही नहीं बट फिर भी सब कुछ सब कर रहे हैं। अच्छा, शार्क टैंक पाकिस्तान। Again, I think I've used this word, but a game changer in the content industry of Pakistan. Great. Shark Tank pitch. What makes one unforgettable? I think unforgettable इसका format खैर ऐसा है कि वो unforgettable, I think linking it with your, I think making unforgettable तो नहीं, but I think I would say कि किस तरीके से chances of getting the investment is higher, impactful कैसे होती है, I think making sure that your product is a market fit. Okay. So if before going into any investor, Shark Tank तो चलो एक प्लेटफॉर्म है, बट आप वैसे भी इन्वेस्टर के पास भी जाओ, सो अगर आप इन्वेस्टर को ये शोकेस कर देते हो ना कि यार ये मैंने चीज़ बनाई है, ये मैंने 10 लोगों पे या 100 लोगों में या 3 शहरों में मैंने ट्राई कर ली है, एंड इट इज अ सक्सेस, सो आई थिंक इट्स अ मार्केट फिट, नाउ आई नीड मनी टू गो बूम, सो द चांसेस ऑफ गेटिंग यू एन इन्वेस्टर बाय योर साइड इज हायर। मेरे ज़हन में एकदम से एक बहुत मजे का क्वेश्चन आया, लेकिन ये इस गेम की बात करूँ। अच्छा, व्हाट अबाउट द शार्क्स, हाउ वुड यू डिस्क्राइब
them in one word? यार वन वर्ड में तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, बट आई थिंक इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम आल्सो. ऑब्वियसली दे बीइंग ऑन टीवी एक दो के अलावा इतने नहीं थे, सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम, बट वेरी प्रोफेशनल, वेरी आई थिंक. Very nice. Okay. Entrepreneurs, the best quality they need. Most of the entrepreneurs that get investment and that become successful as well are so investor ना इन्वेस्ट करते बिजनेस में नहीं करता, वो फाउंडर पे करता है. बिल्कुल ऐसे ही है. क्योंकि सबको पता है कि चैलेंजेस कुछ ना कुछ आएंगे, लेकिन ये बंदा इतना ऐसा है कि ये डायरेक्शन में चैलेंजेस आए तो ये नेविगेट करके इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा ये. सो वो जो एक होती है ना वो रिगरस अटेम्प्ट ऑफ डूइंग, फेलिंग नो मैटर व्हाट, फिर मैं दोबारा कर लूंगा, मैं अब ये कर लूंगा, मैं रेजिलिएंट होना. ये आई वाज मिसिंग दैट वर्ड, रेजिलियंस. आई थिंक हाँ वो जो है ना बड़ा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर्स में, क्योंकि ऐसे चैलेंजेस तो बहुत ही आएंगे कि नहीं हुआ, एक कैंपेन नहीं चला, नहीं बिका, ये आइडिया नहीं क्लिक कर सका, या बहुत सारी सिचुएशन है. रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Shark Tank India. It changed the game for Shark Tank in this region, to be honest. Okay. Even the Pakistani market kind of opened up due to Shark Tank India happening. क्योंकि इससे पहले हम आप लोगों ने देखे हुए थे limited US, UK, obviously Australia, the English version. But I think that happening in Urdu, Hindi first time. So वो उसने mass audience तक पहुंचाया, and that kind of opened up the game for this. All right, thank you so much. This was fun, but more fun is when I do rapid fire round with you, where you have to be really quick with your answers. I'm not going to ask if you're ready. You seem ready, so I'm just going to say let's fire away. My first question is one brand you've loved working on. बहुत सब किया है. आई थिंक Mondelez है एक, हाँ Mondelez बोल देता हूँ. आई थिंक दे आर ऑल योर responses as well. So I worked with them in 2013, 2012, 2013 at Starcom level. So I वो yeah. A book that changed your perspective. I don't generally do. कोई drama that changed your perspective, कोई show that changed your perspective, कोई person that changed. Principles of Marketing is the book that changed my. Philip Kotler. That changed my perspective. Okay, I know it page by page, by the way. IOBM friends you're still in touch with till now. Name 5. बहुत सारे हैं. So अम्मार, नाफे, तारिक, सेरिस, वजीहा, अनम, राबिया, बहुत सारे हैं. मतलब मैं अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत सारे, literally like 20 names तो मैं easily ले सकता हूँ. And you are in touch with them. Yeah, we kind of meet them every week. कुछ के साथ every week, कुछ के साथ every 2 weeks. So वो generally get togethers, क्योंकि सब माशाल्लाह families हो गई हैं, तो वो किसी के घर जमा हो रहे हैं. So वो overall entire. चलो, next is favorite platform for inspiration. LinkedIn, Twitter या Instagram. Pinterest. Yeah. A lot of inspiration. Creative inspiration. Okay, very good one. Best piece of advice you've ever received. I think अभी पता नहीं top of my head यही है. I think जो एक चीज़ मैंने मुझे I think किसी ने ऐसी बातों में not specific मुझे, but I think जो मैंने pick up करी कि यार best strategy is the one that can be navigated. So हमेशा ये लगता था कि यार बेस्ट स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी आपको इसी पे चलना है और यही करना है. बट नहीं, वो आपको कभी भी उसको मोड़ना पड़ेगा, और वो बेस्ट स्ट्रेटजी वही है जो मुड़ भी जाए आराम से. और उसमें आज आपने बोले थे यार ये 4 पॉइंट्स होंगे, हो सकते हैं 6 महीने बाद जाके आप बोले नहीं यार ये 4 नहीं है, ये 2 तो हैं, उसके अलावा 2 पॉइंट्स मैंने चेंज कर दिए. सो मतलब योर स्ट्रेटजी इज it will keep evolving. So you're saying you have to be flexible enough, and so does your strategy. Yeah. And that's the best one. Amazing. I think I needed this. Okay, one skill every founder should master. Communication. I think क्योंकि interaction of being a founder, I think आपकी collaboration, अब आगे जो टाइम है ना वो collaboration का ज़्यादा है, और हर चीज़ जो है ना वो शायद आप ग्लोबली देखें तो इवन आप कोई मूवी भी लगाएं तो उसमें भी शुरू में बड़े आ रहे होते हैं कि दिस इन कोलैबोरेशन विद, पता है इतने लोगोज आ जाते हैं क्या बोलते हो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है. बट कोलैबोरेशन का ही टाइम है अब. उसी से ही चीज़ बड़ी भी होती है, उसी से ही आपकी कॉस्ट सेविंग भी होगी. तो आई थिंक एंड फॉर कोलैबोरेशन आई थिंक गुड कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू टॉक. ओके, नेक्स्ट इज अ फ्रेज यू से टू ऑफन. उर्दू स्पीकिंग है हम, तो हमारे जो है वो एक वर्ड होता है, मतलब यार मैं एक चीज़ ऐसी है, या मैं चीज़ लेने जा रहा था, वो चीज़ जो है ना, तो उसका हुआ ये, हम बैक इन आई थिंक 2007-2008 की बात है, और जब मुस्तफ़ा कमाल जो है ना वो मेयर थे. सो वही बुलाया गया उनको, भाई CBM आ रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें. हम लोग भी ऑडिटोरियम में बैठे हो, उस वक्त फ़ैन थे मुस्तफ़ा कमाल के, उन्होंने कराची एकदम से चेंज कर दिया था. सो हम उठे, हमने बोला भाई हम सवाल करेंगे, और
क्या किया रिजवान? What did you guys do? नहीं मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कोई सवाल ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने बोला यार मैं जो है ना, मैं आपको बताऊं मेरा एक सवाल है कि मैं कल जो है ना एक चीज़ लेने जा रहा था और वो चीज़ लेने पूरा ऑडिटोरियम चीज़ लेने जा रहे थे, भाई क्या लेने अच्छा तो वो एक चीज का जो वर्ड है ना वो मैं कोशिश करता हूँ मैं कम बोलूँ, लेकिन वो निकलता है वो ऐसा स्टक हो गया, वो सब पूरा ऑडिटोरियम हंसना शुरू हो गया कि चीज लेने जा रहे थे, भाई क्या Your most used emoji? आई डोंट नो उसका क्या नाम है, बट आजकल मैं वो बहुत यूज कर रहा हूँ, वो हाइडिंग योर फेस एंड यू face हैव द palm वाला वन, scene। नहीं हाइडिंग योर अच्छा, फेस एंड यू हैव द ऐसे वो जो अभी क्योंकि That's अक्सर hiding your face, dude। आप किसी से फेवर लेने के लिए आप मैसेज करते हो, बाद में यूं कर लो यार। कर दे यार वो वाला। Nice. अच्छा, one thing you tell your 8-year-old self. 8-year-old तो 18-year-old, so sorry. हाँ 8-year-old मैंने बोला कहाँ चली गई उस पर मैं So क्या sorry, not 8-year-old. आई थिंक अब नहीं यार कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ नहीं जो मैं बोलूँ कि यार ये चीज़ मुझे डिफरेंटली कर लेनी चाहिए थी उस टाइम पे, बट आई थिंक हाँ वन थिंग आई वुड से टू माई सेल्फ इवन अभी भी और 4-5 साल पहले भी, आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग इज समथिंग आई एम नॉट रियली गुड एट। Okay. कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, स्टॉक का मुझे नहीं पता, खैर मैं बहुत सारे एवेन्यूज में मुझे ना फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स और ये ठीक वाली है, ठीक चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं आती, सो आई थिंक हाँ इफ आई वुड गो 3-4 years 5-6 years बैक आई वुड से कि यार टेक इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट क्या चल रहा है, कौन से स्टॉक्स क्या ये वो, द बिटकॉइन सिचुएशन, द क्रिप्टो सिचुएशन, या इवन जो भी नए एवेन्यूज आते हैं, सो आई एम नॉट रियली इनटू इट, सो आई थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग इज समथिंग मेरा ये होता है बस कमाते जाओ और खर्च करते जाओ, खर्चा बढ़ रहा है तो कमाना ज़्यादा कर दो, एंड देन आई एम नॉट रियली इनटू काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा रिजवान, my last question is, what would you teach a 5-year-old about life? 5-year-old पे तो उसको क्या ही बताएंगे लाइफ के बारे में, लाइफ जो उसके हिसाब से ना वो इतनी मस्त होती है 5-year-old में तो, बट आई थिंक You have टेंशन kids. नहीं है, Yeah, tension नहीं है। जस्ट चिल हो जाता है सब कुछ, एंजॉय करें, बढ़ते रहें आगे, हैव योर गोल्स इन माइंड, हैव योर एम्बिशंस इन माइंड, ट्राई टू कीप अचीविंग देम, चीज़ें आएंगी, निकल जाएगा वो टाइम भी, हर मुश्किल टाइम गुजर ही जाता है, और आई थिंक एक शायद मैं एडवाइस जरूर दूँ कि यार हर वक्त ऐसे गुजारो कि जब आप पीछे मुड़ के देखो ना तो आप के चेहरे पे बस मुस्कुराहट है, सो यू डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन लाइफ, सो जो जिस वक्त किया अभी भी आई थिंक मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि मैं यार उस टाइम पे ये नहीं करता, लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि यार हर चीज़ किसी के साथ ना एक पॉजिटिव मेमोरी अटैच है, और वो वाला टाइम याद है कि ऐसा गंदा टाइम था जो हमने गुजारा, मतलब इस तरीके से ही बातें कर रहे होते और उसमें यूँ हुआ और यूँ, सो आई थिंक हर वक्त इस तरीके से गुजारेंगे, या जब पीछे मुड़ के देखें ना तो आपको खुशी हो कि यार ये टाइम मैंने गुजारा है, मतलब, सो आई थिंक दैट इज one, keep making memories. That's amazing. Thank you so much, Rizwan, for sharing your journey with us, your insights with us, and your energy with us as well. I think it's like a positive vibe in this studio today, thanks to you. And we also, wish that you do well, and wherever you go, you make us proud, and that you keep coming back. Thank you so much for having me. I think I really enjoyed. I think काफी टाइम बाद खैर इधर आए, and I can see the time that is going on here. हम लोग काफी देर बोले, बहुत लंबा हो गया, बहुत सारी बातें हो गई, but I think thank you so much for calling me यार. I think great set. मैंने पहले देखा था पॉडकास्ट में, and I was like हाँ यार अच्छा बना हुआ है, तो काम तो अच्छा किया है, वो वाली सिचुएशन नहीं होती, but नहीं, it's great to be here. I think you're doing a great job being a host. I think I've met you after so many years, and so many, हाँ, so mashallah से great to see you as well. You also have come a long way, and I think the involvement of overall I see Naban also is now involved with this media department. अब नए लड़कों का ही गेम है, नए लड़के लड़कियों का, so I think the overall situation, overall vibe, overall things that I see at IBM, I think बड़ी एक positive It is very की much. तरफ Very जा much रही like हैं you चीजें। today. Nice. I saw recently अभी I think कोई क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो रहा था इनका, उसकी भी मुझे लाइव स्ट्रीमिंग दिखी, हाँ, बहुत अमेजिंग। आई थिंक आज फाइनली कल हो चुका है कुछ तरह का। सो आई थिंक मुझे आई डोंट नो, मुझे अभी लग रहा है यार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं 6-8 महीने में, काफी ज्यादा, 6-8 महीने एक साल में। So yes. All right, thank you so much, Rizwan. It was really nice catching up. That was the most fantastic Rizwan Siddiqui. Hope you enjoyed this episode as much as we did. To all our viewers, if there is an IOBM alumnus you'd like to see featured on Celebrating Sweet Success, drop us an email. Thanks again to our sponsor partners Cadbury Dairy Milk and Dreamworld Resorts. Thanks to our IOBM media team as well for bringing this show to life. This is Taram Shoot signing off. Remember, success is a journey, not a destination. Keep dreaming big, and we'll see you next, inshallah.